Hello everyone, this is Mr. Sambhaji and I'm currently pursuing MS from NIPER Hyderabad, and here I'm going to tell you about NIPER JEE एडमिशन प्रोसेस मतलब कैसे एडमिशन होता है और क्या 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 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग द काउंसलिंग एट NIPER अहमदाबाद. ओके एंड मतलब क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए उधर. ओके, ठीक है. So many student don't know about the NIPER. Okay. ठीक है. Yes, okay. Indian pharma industry has been a global leader in generic drugs in order to acquire leadership position in drug discovery, drug design, and drug development. Okay, and to continue the excel in the formulations so the government recognize that the human resources or talent pool is very critical. Okay, thus government of India has set up this NIPER. Okay, at first NIPER Sasnagar. Okay, that is instituted in Punjab. Okay, under the Registered Society under the Act 1890, I think. Registered Society Registered Act 1890. Okay, and subsequently the institute was given recognition by an Act of Parliament, that is NIPER Act 1998. Okay, and most importantly, the institute declared as an institute of national importance by the government of India. एंड बाद में जो ये नाइपर्स है हैदराबाद, अहमदाबाद, गुवाहाटी, कोलकाता, रायबरेली, हाजीपुर, these are the NIPERs were started during 2007 and 2008. During this period under the Mentor Institute, which is which Mentor Institute मतलब institutes that helps to setting up this six new NIPERs. Okay, and NIPER Hyderabad has a mentor institute, CSR IICT. NIPER Guwahati has a mentor institute, Guwahati Medical College, like that. Okay, and NIPER Kolkata has a CSR IICB. Okay, रायबरेली has CDRI in Lucknow. Okay, IICB मतलब Indian Institute of Chemical Biology. Okay, and these are the mentor institute which are helps to setting up these six snipers. Okay, but right now by appointing the regular directors by the government of India, these institutes functioning separately. Okay. अगर नाइपर जेई की बात करूँ तो नाइपर जेई is a entrance examination which is conducted by the NIPERs every year in June 1st or second week. Okay, which is organized by one NIPER out of seven NIPER. That is called hosting NIPER. Every 3 years there is a one hosting NIPER. Okay, for 3 year period. Okay, for three-year period, the specific NIPER conduct the exam. I think for three, I don't know, but for I think 3 or 5 years. Okay, um, NIPER host that NIPER J examination, admission process, all these things. Okay, requirement is for NIPER J examination is you should qualify GPAT or GATE, biotech or life sciences. Okay, ठीक है. मतलब if you qualify GPAT, then you can eligible for NIPER JEE examination. Okay, GPAT मतलब GPAT आपका रैंक कितना भी हो, ठीक है, बट यू शुड क्वालिफाई. ओके, हाँ, गेट का भी वैसे ही आपका रैंक कितना भी हो बट यू शुड क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. ओके, गेट बायोटेक और गेट life sciences. Okay, one of my friend has qualified GATE but not GPAT. Okay, but he is now in NIPER Mohali. Okay, ठीक है. डिफरेंस तो जीपैट में नाइपर में यही है कि जीपैट का सिलेबस तो डिफाइंड है और नाइपर जेई का सिलेबस डिफाइंड नहीं है. ओके, लेकिन नाइपर जेई मतलब नाइपर कंपनी एक नाम की एक बुक है, नाइपर सॉरी इनामदार मैम की. ओके, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट किया है जीपैट और नाइपर में. ठीक है, जीपैट में क्या इम्पोर्टेंट है, नाइपर में क्या इम्पोर्टेंट है. ठीक है, नाइपर जेई में क्या इम्पोर्टेंट है और जीपैट में ये दोनों एग्जामिनेशन का डिफरेंस मैम ने बताया. ठीक है, वन यू शुड रीड दैट बुक. ओके, then we can get clear understand about the NIPER JEE examination. Okay.
जीपैट का एग्जामिनेशन होता है 125 क्वेश्चन का, और नाइपर का एग्जामिनेशन होता है 200 क्वेश्चन का। ओके। और जीपैट में टाइम लिमिट है 3 आवर्स, और नाइपर नाइपर जेई में टाइम लिमिट है 2 आवर्स। ओके। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप आपको क्या इम्पोर्टेंट है। कि नाइपर जेई में आपको इम्पोर्टेंट यही है कि आपको मतलब एक्यूरेसी विद टाइम। ओके। इन टाइम एक्यूरेसी। ओके। इसका ध्यान रखना है आपको, अगर आपको अच्छी रैंक चाहिए तो। ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की बात करो तो टाइम मैनेजमेंट तो ऐसा करना है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना है। ठीक है। आपको लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना ही है। ठीक है। तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है। आपको कितना आता है यही नहीं इम्पोर्टेंट है कि आपको कितना आता है, लेकिन आपको लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना जरूरी है। ठीक है। इससे आपका स्कोर बढ़ सकता है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन तक जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन आते हैं, और कौन से 200 क्वेश्चन में से कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं आते, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है। आपको लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना है। ओके। अगर एप्टीट्यूड की बात करूँ तो एप्टीट्यूड का मतलब इतना कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है। तो आप एप्टीट्यूड का अगर क्रिटिकल क्वेश्चन होता है तो उसको इग्नोर करना ही बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन आपको यही ध्यान में रखना है कि आपको इस 2 आवर्स में 200 क्वेश्चन तक पहुंचना है, 200 क्वेश्चन तक पहुंचना है। ओके। तो बाकी के क्वेश्चन का मैं इधर जो क्वेश्चन लिखे, बाकी के क्वेश्चन का मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। ओके। ठीक है। Currently, Naipur presents or imparts PhD and PG level education, and grants the degree under Naipur Act 1998. Okay. And for this, student were selected from Naipur JEE examination. Okay. Or PhD also has their नाइपर जेई एग्जामिनेशन। ओके। नाइपर जेई पीएचडी नाम की एग्जाम होती है उनको। ठीक है। और उनको स्टाइपेंड इतना होता है, और जो ये नाइपर जेई वालों को इतना स्टाइपेंड होता है। ठीक है। मतलब जीपेट का स्टाइपेंड ही है, जो ऑल इंडिया में जीपेट का स्टाइपेंड है, उतना ही स्टाइपेंड नाइपर जेई को भी है। ठीक है। नाइपर को अलग स्टाइपेंड नहीं है। ठीक है। मतलब जितना स्टाइपेंड नाइपर वाले जीपेट वालों को देते हैं, वही स्टाइपेंड नाइपर जेई वालों को भी है। ठीक है। ब्रांचेस की बात करो तो इतने सारे ब्रांचेस है। ठीक है। इतना पता नहीं होगा कि इतने सारे ब्रांचेस भी है। ठीक है। तो इतने सारे ब्रांचेस नाइपर्स में है। ठीक है। I think total 16 branches is there in Naipers. Okay. But this all branches in not all Naipers. Okay. Some branches is missing in some Naipers. Okay. But Naipur Mohole has all these branches. Only medical devices not there. Okay. Medical devices branch is in Naipur Ahmedabad only. Okay. हाँ। आपने तो सिलेक्ट किया ही होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, कौन से ब्रांच किस स्नाइपर में चाहिए। ओके। आपने तो सिलेक्ट किया ही होगा, बट सपोज आपका रैंक हाई आ जाता है और रैंक रैंक अच्छा नहीं आता है, तो आप ऑप्शन रखना मतलब फायदे फायदे में रहेगा। ठीक है। क्योंकि ऑप्शंस क्योंकि इतने सारे ब्रांचेस हैं, तो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि ठीक है इतने सारे ब्रांचेस है, तो मैं यही नहीं मिला तो ये लूंगा, ये नहीं मिला तो ये लूंगा। ठीक है। ऐसा आपको ऑप्शंस रखना चाहिए। ठीक है। और इस साल तो सीटें भी बढ़ी है और फीस भी बढ़ी है। ओके। एंड देयर आर सम ब्रांचेस लाइक फार्माकोइन्फॉर्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस। ओके। these are emerging branches right now. Pharmacoinformatics is emerging branch due to entry of artificial intelligence in drug design and drug discovery. Okay. And medicinal chemistry and pharmacoinformatics have a connection. Okay. Somewhat connection in case of computer aided drug design. Okay. सो दिस मच ब्रांचेस। अगर ब्रांचेस सिलेक्शन में आपको कोई कंफ्यूजन है और आपको कोई किस ब्रांचेस में मतलब जानना है, तो किस ब्रांचेस के बारे में जानना है आपको, तो लिंक्डइन इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके। उधर आप मतलब आप जस्ट टाइप कर सकते हो सर्च बॉक्स में। इसके लिए आपको लिंक्डइन में अकाउंट निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो जस्ट टाइप इट फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स
नाइपर मोहाली और नाइपर अहमदाबाद और कुछ भी मतलब जिस नाइपर में जो डिपार्टमेंट है वो आप टाइप कर सकते हैं, ओके। और बाद में आपको सब एंट्री आ जाएगी तो मतलब सब सीनियर्स आ जाएंगी ओके, ठीक है। तो आपको उधर मतलब उस सीनियर को रिक्वेस्ट सेंड करना है रिस्पेक्टिव सीनियर को और आपको आपको ब्रांच ब्रांच के बारे में आपको बता देंगे, ठीक है। क्योंकि यही सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि जो स्टूडेंट उस ब्रांच में है तो उसको ही ज़्यादा पता होगा, ठीक है। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको, लिंक्डइन इज बेस्ट प्लेटफॉर्म और इसके थ्रू आप सब ब्रांचेस का एनालिसिस कर सकते हैं, ओके। ठीक है, क्योंकि आप अगर आपको आपकी पसंद का ब्रांच ब्रांच मिले तो वेल एंड गुड, ओके, नो इश्यू। बट अगर आप जानना चाहते हो कि फार्माकोइनफॉर्मेटिक्स कैसा है, मेडिकल डिवाइस कैसा है, इसका फ्यूचर क्या है और क्या नहीं है, तो आप इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। अगर आपका रैंक हाई आ जाता है, अगर आपको आपकी मनपसंदीदा ब्रांच नहीं मिलती है, तो ये सारे आप रिसर्च कर सकते हैं आप, ठीक है? आपको रिज़ल्ट आने के बाद आप ये काम कर सकते हैं सब, ओके? अ, रिज़ल्ट तो 2 या 3 दिन में ही आता है, ठीक है? तो इसके बारे में थोड़ा हाँ, मुझे ये बताना है कि हाँ, आपका मतलब कैटेगरी रैंक बहुत मायने रखता है एडमिशन को, ठीक है? कैटेगरी रैंक आपको मतलब नेपर हर साल ऐसा करता है कि कभी कैटेगरी वाइज रैंक लगाता है और कभी ऑल इंडिया रैंक लगाता है, ठीक है। तो अगर आपका कैटेगरी वाइज रैंक नहीं लगाया तो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। जस्ट कैलकुलेट ऐसा करना है कि सपोज आपका रैंक टू हंड्रेड है, ठीक है। 200 है तो उसके ऊपर आपके क्लास से कितने बच्चे यही देखना है, ठीक है। तो कितने टोटल हो गए सपोज आपके ऊपर सपोज 10 बच्चे हैं, ठीक है। तो आपका रैंक 10th है कैटेगरी में, ठीक है। तो कैटेगरी रैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडमिशन, ओके। क्योंकि कैटेगरी रैंक इज रिजर्व फॉर द एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि सपोज आपका रैंक 10 है कैटेगरी वाइज, ठीक है। और नेत्र मोहाली में सपोज मेडिसिन केमिस्ट्री में 4 सीटें रिजर्व है एससी कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब सपोज आप एससी कैटेगरी के और एससी कैटेगरी के लिए 4 सीट्स रिजर्व है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब मेडिसिनल केमिस्ट्री लेंगे ना, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए 4 सीट्स अ, तो रिजर्व है, ठीक है। तो आपका उधर चांसेस है, ठीक है। ऐसा आप गेस कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा आप सब ब्रांचेस में गेस कर सकते हैं। हम्म। और इसके लिए आपको ब्राउचर देखना पड़ेगा, ठीक है। यू शुड रीड केयरफुली ब्राउचर which is released by Naipur Ahmedabad, okay. Okay, so make plan and make branches, give the priority to the branches and select accordingly, ठीक है। उधर कोई गड़बड़ मत करना, ठीक है। ओके ओके, दिस इज द मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्मेट which is given by the Naipur Ahmedabad, सॉरी मतलब होस्ट नाइपर, ठीक है। एंड दीज आर द टेस्टिंग, यू शुड डू द टेस्टिंग, ठीक है। इधर ये लिखा है ना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। इधर का ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओके। इधर का ही आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, इधर सब ये फुलफिल होना चाहिए, ओके। फुल नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेजिग्नेशन, नेम ऑफ हॉस्पिटल, ओके। ये सारे टेस्ट मैक्सिमम टेस्टिंग तो आपका करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, जो नहीं करेंगे उधर ये लिख देंगे, ठीक है। ओके, तो ये आपके रिजल्ट के बाद ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये करके रखना, ठीक है। ये जल्दी से मतलब ये डॉक्यूमेंट थोड़ा जल्दी से करके रखना, ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कुछ अलग फॉर्मेट नहीं बनाना है, जस्ट मतलब ये सॉरी ये 32 पेज नंबर है ना, 32 पेज नंबर का मतलब जस्ट कलर प्रिंट निकालना है, ठीक है। और ये प्रिंट लेके जाना है उधर, ठीक है, हॉस्पिटल में। वो सारे आप टेस्टिंग कर देंगे और उसके हिसाब से आपको ये मेडिकल सर्टिफिकेट दे देंगे, ठीक है। और वो पूछेंगे कि क्या है, किस लिए है, तो आप थोड़ा मतलब अच्छे से बता देना, ओके। कॉलेज स्टूडेंट है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। अ, ये है अंडरटेकिंग, ओके। दिस इज द ये नोट पढ़िए, ठीक है। ये इधर कहा है कि
आपको स्टाम्प पे ये लाना है, ठीक है? ये इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है और स्टाम्प में कॉपी पेस्ट करना है, ओके? और ये जो लिखा है जो डिटेल्स ये भरना है आपको, ओके? फिल करना है और बाद में आपको एक एडवोकेट के पास जाना है और वो जो प्रोसेस है बाकी की नोटरी ये लिखा है ना वो प्रोसेस कर देंगे, ठीक है? और वो भी पूछेंगे आपको कि क्या है, किस लिए है, तो आपको सब अच्छे से बता देना है इसको, ठीक है? अगर आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको घर वालों को पता होगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। ये अच्छा है कि ये टाइप मत करिए आप, पेन से लिखिए तो अच्छा ही होगा, ठीक है? आपकी कन्वीनियंस के अनुसार आप ये कीजिए, ठीक है? ओके। सेम नेक्स्ट फॉर्मेट है, इसको भी आपको वैसे ही प्रोसीजर करना है, इधर प्रोग्राम लिखा है, डिसिप्लिन लिखा है ना, ये आपको मतलब नहीं लिखना है, ओके? क्योंकि आपको प्रोग्राम डिसिप्लिन कौन सा मिलने वाला है ये पता नहीं है, ठीक है? हुँ? तो ये नहीं लिखना है आपको, ये लिखना है आपको, ठीक है? रजिस्ट्रेशन नंबर भी आई थिंक नहीं लिखना है, ओके? मतलब जो पता नहीं है आपको वो मत टाइप कीजिए, ठीक है? मतलब टाइपिंग फॉर्मेट में मत लीजिए, ओके? उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, मतलब कॉपी पेस्ट जब करते समय आप, ओके? समझ में आया ना? ओके, जो ये इधर नोट पढ़िए, ठीक है? ये भी सेम प्रोसीजर करना है आपको, मतलब एडवोकेट के पास जाना है, वो पूछेगा सब और उसको अच्छे से बता देना है, ओके? अकॉर्डिंगली वो कर देगा, ठीक है? नो प्रॉब्लम। ये फी स्ट्रक्चर है, देखिए ये जो फीस है 79625 समथिंग, ये जो फीस है आपको ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसीजर ये आपको मैंडेटरी है, ठीक है? इसको डीडी फॉर्मेट में आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है? डीडी फॉर्मेट में लेके आपको उसको उधर देना है, ठीक है? ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसीजर इधर लिखा है पेएबल ऑन एडमिशन, ओके? एंड दिस इज आल्सो फीस ऑफ सेम वन, ठीक है? सेम वन, हाँ, बट आफ्टर सेमेस्टर वन, मतलब जब आपका सेमेस्टर खत्म हो जाएगा इन मई, तो ड्यूरिंग दिस मंथ मतलब इन मई लास्ट लास्ट वीक you should you have to pay this much fees, okay? 38025, okay? You have to pay this much fees, okay? In May last week, okay? this fee ये फी तो आपको मतलब ऑनलाइन तरीके से आप उधर भर सकते हैं, ओके? नो इश्यू, मतलब दिस फीज ओनली डीडी फॉर्मेट, ओके? मतलब दिस मच फी इज फॉर 3 4, okay? For 3 semesters this much fee is there, okay? In every 3 semester, okay? मतलब semester number 2, semester number 3, semester number 4, for this much fee is there, okay? It is very important to know about, okay? अगर आपको लोन मतलब ये आपको पता चलेगा तो आप लोन का भी मतलब ट्राई कर सकते हैं ना, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, ठीक है? ओके, इसलिए आपको मैंने ये बता दिया, ठीक है? तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ओके? थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, ओके? आई विल ट्राई टू रिज़ॉल्व एज़ सून एज़ पॉसिबल, ओके? अगर आपको कोई और किसी बात का वीडियो बनाना है और कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है? जस्ट कमेंट इन बॉक्स, आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज़, ओके? ठीक है। थैंक यू।